फर्स्ट ट्रेनिंग है तो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं ठीक। ओके नहीं 2 मिनट कम से कम 30 सेकंड और बोलना सर। कुछ भी बोलिए, अपने सेंटर के बारे में बताएं कि सेंटर में क्लास कैसे चलता था, यहाँ कैसे हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ से जाएंगे तो फिर क्या करवाएंगे, यहाँ से क्या टेक अवेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हैं। आधा घंटा बोलेंगे तो बहुत सारे लोग आधा घंटा भी बोलते हैं, तो यू हैव टू जस्ट 30 सेकंड और बोलना है। ग्रीप स्पेशली जो हमारे सेंटर में जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के था, जो सीएलएस वाले जो स्पेशली पार्ट हैं उसको एक तरह से हम लोग बहुत, जैसे कि एमकेसीएल की तरफ से जो भी एरर्स आते हैं, टेक्निकल एरर जो भी रहते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटी जो बताए गए बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगता है करेंगे। जो यहाँ से हम लोग जो यहाँ से बताया गया है उसको हम फॉलो करेंगे। Know about these topics, only about the feedbacks to all of you and my teachers also. So master trainers is also good, have hardware knowledge and very effective, and time management is properly, and but I am say that all learners and masters say that so many things about different is there, like classroom and seminar halls, auditorium rooms, but in this KYP all of students are coming in this room, so just like thinking for students is different, because that is a VR board and CBSE boards also, है ना, and the age of 15 है ना, 15 to 18 and not above the 21, 25 and 30, है ना, so these students are know about that things, what is KYP and what is SHA and BSCC, so this is a 3 days training, so read about the CIT, CLS and CSS, and soft skill is also very good, and CIT is also known as how to qualify this master trainer, and sorry, LS language skill is also individual activity, just like food activity, adjective activity. These concentrate your mind and eye contact to, and power of listening, how to listen that, and how to speak English, Hindi is not mandatory to you, है ना, so let's find some doubts, some doubts. Master trainer is also say that you are a formal, है ना, and to prepare some shoes, formal dresses, and also say that, है ना, and last one more thing, today is the last day of my training, है ना, so we are create a lots of friends, just like Raju ji, Saurabh ji and Himanshu and many more things, and that friends are very visible, effective and smart worker also, है ना, these are some learners, है ना, and that trainings we have go to our centers and gain a knowledge and the various of knowledge gain to deliver the center student, है ना, because these students know about all that, what did you want to say and what did you want to doing this, है ना, so these students helpful for you, because my center coordinator was the owner as a LF. He's going to Patna and Dasrat Amazi auditorium. So lots of things gain a knowledge and deliver to the student. So first of all, you deliver these types of knowledge because the 3 modules in the syllabus: CIT, CLS, and SS. So all LF and coordinator know about the CIT, but some LF are know about the CLS and CSS. That's the lack of knowledge. So gain this knowledge and deliver to the students. That's all. Thank you. वो 3 दिनों का सर वीडियो तो हम रेटिंग नहीं दे पा रहे हैं, 3 दिनों का ट्रेनिंग हम लोग वीडियो जो को रेटिंग नहीं मिला, दे पा रहे हैं वो भी कितने रिक्वेस्ट करने क्योंकि के बाद। वीडियो तो आ जा तो रहा है, ऐसा तो है। रेटिंग देने की भी समय चाहिए। मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ, ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग है, ठीक है, बड़े ही मुश्किल से हम लोगों के बीच मिला, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे रिक्वेस्ट डाले थे सर हम लोगों को। इसके पहले जो ट्रेनिंग मिला था 2019 में, एक वैसा ही ट्रेनिंग हम लोगों को मिले, क्योंकि हम लोग जो मतलब इसके पहले जो कंटेंट पे पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो कंटेंट कुछ और था, सेम कंटेंट नहीं है, ठीक है, उसमें उससे हट के ये वाला कंटेंट जो है, उससे हट के ये वाला कंटेंट आया। क्योंकि जब कंटेंट जो होता है ना, हम लोग का जब चेंज होता है कंटेंट, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ अपग्रेडेड हो रहा है, ठीक है, और पहले वाले कंटेंट से ये कंटेंट कुछ अपग्रेडेड है, इसलिए हम लोगों को क्या है कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता थी।
और उसमें क्या क्या हुआ ना कि एमडी सर ने बहुत ही मशक्क़त के साथ हम लोगों को ये ट्रेनिंग मतलब दिलवा रही है। और इसमें क्या है कि ये ट्रेनिंग हम लोगों के मतलब करियर के लिए और बहुत ही बेटर है। और हम लोग यहाँ से अगर कुछ सीख के जाते हैं अच्छे चीज़, हम लोग क्या कर सकते हैं वो मतलब अपना एक्सपीरियंस साझा एक अपने स्टूडेंट के साथ करेंगे तो और वो और बेटर होगा, ठीक है। और उसमें क्या है, सबसे पहला चीज़ हम लोग जो वहाँ पे आईटी का क्लास कराते थे, आईटी के क्लास में बच्चे को इंडिविजुअली तरीके से एक अच्छे तरीके से हम लोग वहाँ पे रोक लेते थे, ठीक है। और सीएलएस में जो हम लोगों की बात आती थी, ऐसा है कि हम लोग का एमकेसीएल का मीटिंग जब डिस्ट्रिक्ट में होता था, हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट मीटिंग में बोलते थे सीएलएस में कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को प्रफुल्ल सर के द्वारा बताया गया कि हम लोगों के पास अगर टाइमिंग मतलब स्टूडेंट को मतलब नहीं उतना इंगेज कर पा रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ एक्टिविटी को करा करके स्टूडेंट को हम रोक सकते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने क्या किया कि सर के द्वारा एक पाम एक्टिविटी कराया गया, ठीक है। और उसमें क्या था कि हम लोगों को अपने 5 फिंगर तो मतलब एक मतलब वो था ना चित्र हम लोग बनाए, ठीक है। और उसमें क्या था कि हम लोगों ने अपने 5 विशेषताओं को उसमें मतलब इंक्लूड किया और उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छे तरीके से आके बेहतर तरीके से बताया, ठीक है। मेरे अंदर 5 क्या क्या खूबी है वो एक है। और दूसरा सर इसके पहले जो एक्टिविटी करवाए थे उसमें क्या था कि ड्राइंग एक्टिविटी, उसमें क्या था ड्राइंग एक्टिविटी। हम लोगों के पास अगर कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अगर एमकेसीएल की तरफ से आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम में अटेंडेंस इशू हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, कभी कभी सेशन ऑलरेडी रेड हो जाता है। और तीसरा क्या है ना कि हम लोगों के सेंटर से कुछ इशू आता है कि कुछ ना कुछ मतलब लाइट फॉल्ट, हम लोग ऐसा है कि जो भी मतलब सिस्टम चल रहा है वो क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हम लोगों के बीच हो सकता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल प्रॉब्लम जब भी आता है वो अचानक आता है, किसी को बता कर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे बच्चे को रोकने के लिए क्या कर लेंगे, ड्राइंग एक्टिविटी को करवा सकते हैं, जैसा कि सर ने हम लोगों के साथ कल करवाए थे। और वो सबसे बेहतर तरीका है, स्टूडेंट को हम आराम से रोक सकते हैं, ठीक है। और सीएसएस में क्या था कि सीएसएस में हम लोगों का सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग एक फॉर्मल ड्रेस में और फॉर्मल शूज में अगर सेंटर पे जाते हैं, अगर क्या होता है ना कि अगर हम लोग सबसे पहला चीज़ है इशारा ऐसे करते हैं किसी के ऊपर, इशारा हम लोग ऐसे करते हैं किसी की तरफ, वो क्या होता है ना 2 उंगली ही उसके तरफ जाता है, 3 उंगली मेरे तरफ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा गलत हम हैं और दूसरा आदमी हमसे कम गलत है, ऐसा मतलब मेरे इधर ऐसा उंगली जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है हम किसी को बोल रहे हैं वो गलत है, वो हम मतलब वो गलत है, मतलब जितना वो गलत है उससे ज़्यादा गलत हम हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग से जाने के बाद सबसे पहला चीज़ होना चाहिए कि हम लोग पूरा ड्रेस कोड में सेंटर पे जाएं, ताकि स्टूडेंट भी उस चीज़ को देख करके मतलब फॉलो करें। जब सर पूरा मतलब फॉर्मल में आ रहे हैं तो हम लोगों को भी पूरा फॉर्मल में क्लास आना चाहिए। जब स्टूडेंट लोग पूरा फॉर्मल में आएंगे वो क्लास सबसे बेहतर लगेगा, ठीक है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ आया था फर्स्ट डे एज अ ट्रेनिंग के लिए ड्यूटी में, तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी वो CLS और CSS के टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि एज ए LF मैं एज ए नया LF हूँ, 3 महीने पहले मेरी ID आई है, ठीक है। जब मैं क्लास लेने जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ CIT के जो टॉपिक्स थे मेरे पास, ठीक है। आई हैव ओनली CIT और जो CLS CSS के जो क्लास होते थे वो मैं दूसरे स्टाफ के भरोसे रहता था। अब बाई चांस कोई स्टाफ अगर एब्सेंट रहे या फिर नहीं आए कोई कारणवश, तो क्लास में या तो खाली आता था या बच्चे बोरिंग फील करते थे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ आया ट्रेनिंग के लिए तो आई हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक्स CLS में भी और CSS में भी। जैसे CLS में प्रफुल्ल सर और CSS में जसीम सर ने एक टॉपिक्स बताया। आई हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, मैं अकेले अब CLS CIT और CSS तीनों की क्लासेस अब आराम से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। पहले क्या था ना मेरे पास तो सिर्फ आर्टिस्ट थी, उसे भी लिमिटेड थे, 60 दिन का क्लास होता है, मैं मैक्सिमम जो था मेरे पास 40-45 दिन तक भी मैं क्लास ले पाता था,
और बाकी जो थोड़ा क्लासेस थे वो मैं थोड़ा खींचता था, तो कुछ बेसिक्स होता है कंप्यूटर्स की उसको थोड़ा खींचता था। बट जैसे कि यहाँ पे था 12 पिलर्स ऑफ KYP, मैं उसको डिफाइन करता था, ऐसा नहीं है, मैं वो भी बताता था, बट जो एक प्रॉपर वे होता है ना, मैं उसमें नहीं बता पाता था, ठीक है, तोड़ के। बट जैसे ही सर्स ने बताया 12 पिलर्स ऑफ KYP, उसके मैं एक क्या बोलते हैं आराम से बता सकता हूँ एज ए टॉपिक, तो एज ए थोड़ा दिन भी जाएगा, मतलब 10 दिन तक आराम से बता भी सकता हूँ, ठीक है, और एकदम प्रॉपर वे में जाएगा, ठीक है। जैसे कि और CLS में भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उसमें भी मैं एक्टिविटीज़ वगैरह करा सकता हूँ, जैसे कि अभी नीलेश सर ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, ठीक है, तो उसके द्वारा बीच में भी हम वो सब करा सकते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा एज लास्ट में, जो भी हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेन किया है, ठीक है, इज़ अ वेरी गुड फॉर मी एज अ ट्रेनर। मैं बहुत कुछ लगभग यहाँ पे सीख चुका हूँ, ठीक है, हाउ टू मैनेज द क्लासेस, क्योंकि मैं अभी नया नहीं था, मैं पहले ही बताया था, आई हैव ओनली 3 to 4 मंथ, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास है लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, एंड थैंक यू फॉर द मास्टर्स ट्रेनर्स फॉर ट्रेनिंग, थैंक यू। My name is Shambhu Kumar from BSDC Bansi, Urban. मैं KYP जब मैंने ज्वाइन किया था और अब के अंतराल में मैं अपने आप को आंकलन करता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत सा ऐसा इम्प्रूव हुआ है जो हम हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा और हमारे जो कोर्स द्वारा चलाए जा रहे हैं, उससे हमको अंदर बहुत सारा अब तक हम जो यहाँ पे आप लोग के बीच कुछ अपनी बातों को रख रहे हैं, ये मास्टर ट्रेनर के दिया हुआ है, और कुछ हमारे जो BSDM जो दिए प्रोडक्ट उसके द्वारा हम हासिल किए हैं। हम मेन है मुद्दा कि हमारे आज 3 दिन का ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, उसमें हम लोग के क्या इससे हमको फ़ायदा मिला और क्या हम अपने सेंटर पर जाके एक्टिविटी करा सकते हैं स्टूडेंट को। तो हम हमारे ट्रेनर द्वारा एक्टिविटी जो कराए गए जैसे CIT और CLS और CSS तीनों में हमारे जसीम सर, प्रफुल्ल सर, एक अभिषेक सर, ये तीनों मिलकर हम सबको एक ऐसा एक्टिविटी दिए जो सेंटर पे हर एक सेंटर पर टेक्निकल फॉल्ट आते रहता है, और कुछ न कुछ BSDM से या हमारे सेंटर के कुछ ऐसा सिस्टम से कुछ फॉल्ट होता है, तो हम बच्चों को कवर नहीं कर पाते हैं। बच्चों को कैसे हम संभालें, हम खुद नहीं कैच कर पाते कि हम आखिर बच्चा को घर पे ठा दे या फिर सेंटर में। अगर ये सेंटर में ही रखेंगे तो बच्चा तो वो हल्ला करेगा ही, क्योंकि जब तक उसको मिलेगा नहीं कुछ वहाँ पे सीखने के लिए कुछ आप ही नहीं मिलेगा, तब तक तो भाई नॉर्मल सी बात है। अभी अगर यहाँ पे बैठे हैं, अगर सर हमारे नहीं रहते तो हम लोग भी आपस में बात विचार करते रहते, यहाँ के बात वहाँ, यहाँ के बात वहाँ करते रहते। तो वही एक्टिविटी हमारे सर द्वारा दिया गया है, और वो एक्टिविटी एक तरह से हम लोग के महत्वपूर्ण हो गया। जब ये एक्टिविटी हम जब करवाएंगे सेंटर में जाकर, तो बच्चों को भी लगेगा कि ना सर आपकी बार जो ट्रेनिंग में गए उस पिछले से बेहतर अभी हमको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो हम कोशिश ना आशापूर्ण विश्वास करते हैं कि हर एक सेंटर में और हमारे साथी अपने अपने सेंटर में भी टाइम अप वेरी नाइस। मेरा नाम छोटन कुमार, मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। छोटन हमें यहाँ पे आके बहुत चीज़ सीखे जो हमको नहीं पता था, जैसे CIT के बारे में और एक्टिविटी के बारे में। सेंटर पे बहुत कम क्लास लेते थे, कभी जाते हैं, ज़्यादा मार्केटिंग देखते हैं। तो यहाँ पे आके क्लासेस के बारे में बहुत जाने, कैसे क्लासेस कराना चाहिए, कैसे वहाँ सिस्टम
रखना चाहिए टीचर के अंदर, और टाइमिंग के भी बारे में कि कितना बच्चे के साथ टाइमिंग देना चाहिए पर टीचर को। छोटे ना शुरू में जो आए थे ट्रेनिंग से पहले और अभी आप में क्या चेंज आया, उसको 1 मिनट में डिस्क्राइब करेंगे? क्या फील कर रहे हैं अभी आप ट्रेनिंग 2 दिन में? सर ये फील हो रहा है कि पहले आए थे तो यहाँ पे आने में बहुत डर लगता था, ताकि अब थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सर इसलिए डर लग रहा है कि पहले बार हम ट्रेनिंग में आए हैं, ज़्यादा सेंटर पे काम नहीं किए। इसलिए तो आप ऐसा कीजिए ना, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने एक्टिविटी क्या की, उसको तो कम से कम बता सकते हैं। कुछ याद है आपका? आप 3 दिनों में क्या क्या एक्टिविटी की, जो नया है, बिल्कुल नया, जो आप कभी नहीं किए और यहाँ आपको लगा कि इंटरेस्टिंग, हमको ये अपने सेंटर पर जाके करना चाहिए, उसको बताइए ना। सर सेंटर पे एक्टिविटी नहीं कराए हैं। आपने यहाँ जो 3 दिन में सीखा, उसमें क्या सीखा? कुछ एक्टिविटी आपको याद है क्या? मेमोरी चेक, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड सर। मुझे यहाँ आने से पहले यह लग रहा था, मेरा नाम राजू कुमार हो गया, सीतामढ़ी से, बथनाहा बेस्टी से। मुझे यहाँ आने से पहले हम ये सोच रहे थे कि वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, कैसा फील होगा, हम लोग से बहुत सीनियर लोग मिलेंगे या जूनियर लोग मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें भी मुझे बहुत डर लगता था। यहाँ पे आने के बाद हम बोल नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा फील हो रहा था। लेकिन हमारे सर लोगों ने, मास्टर सर लोगों ने हम लोग को इतना मोटिवेट किया कि आज आकर के हम यहाँ पे कुछ बोल पा रहे हैं। इससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ट्रेनिंग में क्या होगा, कैसे होगा। मुझे तो डर लग रहा था कि वहाँ पे जाने के बाद हम कुछ बोल पाते हैं या नहीं भी बोल पाते हैं। लेकिन इन 3 दिनों में हम लोग ने इतना सीखा कि अपने सेंटर पर जा कर के स्टूडेंटों को बहुत अच्छे नॉलेज दे सकते हैं। और यह होता है कि कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है या नहीं, CLS में, यानी कि CLS में टाइम अगर बच रहा है तो हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट को बोरिंग फील नहीं होने के लिए हम कुछ एक्टिविटी भी करा सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमने ऐसे लोगों से मिला जो अब ट्रेनर के साथ साथ अपने से सीनियर लोगों से मिला। हम लोग ट्रेनर के साथ साथ जो हमसे सीनियर लोग हैं उनसे भी कुछ सीखने को मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना चाहिए या कैसे किसी से बात कैसे कर सकते हैं, वो सब लोग हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन 3 दिनों में सीखा। और अब जा कर के हम लोग सेंटर पे अपने स्टूडेंटों को कभी बोरिंग फील नहीं होने देंगे। या ऐसा नहीं है कि कभी ये भी होता है कि स्टूडेंट लोग आते हैं और सेंटर पर से ही चल जाते हैं, मतलब आने के बाद 2-3 दिन में ऐसा होता है कि ड्रॉप आउट होने लगता है, क्योंकि देखते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है या बोरिंग फील होने लगता है। कभी कभी ऐसा उन लोगों का लगता रहता है। हम लोग फर्स्ट डे ही स्टूडेंट को, हम लोग को यह पता नहीं था मुझे कि स्टूडेंट को कैसा फील होता होगा जब हम कोई स्टूडेंट को अगर खड़े करा देते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को टीचर ने जो सिखाया कि स्टूडेंट को कैसा फील होता होगा, जैसे कि हम लोग भी खड़े होते हैं ना, तो हम लोग को भी कुछ डर सा लगने लगता है। लेकिन हमारे सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, डरने का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग फ्रेंडली रह सकते हैं। तो अब से हम लोग भी जाएंगे अपने सेंटर पे तो स्टूडेंट को फ्रेंडली बना करके रखेंगे, उनको ज़्यादा डांटेंगे नहीं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, उनको फ्रेंडली रखेंगे ताकि उनको भी कुछ बोरिंग फील नहीं हो। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है, मैं सीतामढ़ी जिला से आया हूँ। मेरा सेंटर रीगा ब्लॉक में चलता है। इसका सेंटर कोड है KYP 09050011। मैं मतलब कि पहला बात है कि ये मेरा पहला ट्रेनिंग है। पिछले मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। मतलब कि मेरे ही ज़िला में से इससे पहले जो बैच चल रहा था ट्रेनिंग का, उसमें से मतलब कि जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हुए थे, उसमें से हमको पता चला मतलब कि कुछ ऐसा जिससे यहाँ पे हम आने से हिचकिचाहट रहे थे, ठीक है।
हम सोच रहे थे कि मतलब वहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा क्या नहीं होगा। फिर मेरे जो सेंटर कोऑर्डिनेटर है उन्होंने मेरे हौसला बढ़ाया कि नहीं आप एक बार मीटिंग में जाइए, मतलब कि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो हम उनका बात रखें और हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद मेरा पहला क्लास था इंट्रोडक्शन का, इसमें इंट्रोडक्शन में सर ने हम लोगों का इंट्रोडक्शन लिया और अपना भी इंट्रोडक्शन दिए जिनसे हम सर को पहचान सके। उसके बाद हुआ ये हमारे साथ मतलब कि कुछ एक्टिविटियाँ कराई गई, जैसे फूड एक्टिविटी हुआ, नेम के साथ एक्टिविटी हुआ, ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी हुई। कुछ मतलब कि हम लोग को अपने जो साथीगण हैं उनसे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला। उसके बाद हम लोगों ने CIT में 12 पिलर्स के बारे में सीखा, उसको अलग अलग एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोग CLS में अपना लैंग्वेज स्किल जो होता है, हम लोग को कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज़ें CSS में हम लोगों ने यही सीखा। मतलब किसी सामने वाले पर्सन से हम बात करें तो उनके सामने को कैसे पेश आना है, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमको कैसे वहाँ पे परफॉर्मेंस करना है, वो सारा चीज़ हमको वो CSS में सीखने को मिला। उसके बाद जो हुआ मतलब कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटी भी जिसमें हम लोग बच्चे को इंगेज कैसे करना है। मान लीजिए हमारा क्लास कभी कभी होता है CSS में ये होता है कि हमारा क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, लैब थोड़ा, उसमें हम लोग का जो टाइम बचता है उस टाइम में हम लोग बच्चे को इंगेज कैसे करेंगे, ये हम लोग को मतलब कि इस एक्टिविटी से पता चला। इससे पहले हम मतलब कि जहाँ तक जब से मैंने ज्वाइन किया है वहाँ तक कोई एक्टिविटी नहीं हुआ था। अब यहाँ से जाने के बाद जो होगा टाइम बचेगा, उस टाइम में हम अपने बच्चों के साथ वो एक्टिविटी शेयर करेंगे। और जो हमारे LF लोग हैं उनसे भी हम ये एक्टिविटी अपना मैं यहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा वो हम LF लोग के बीच में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। Good morning dear LF and good morning sir. My name is Deepak Kumar. I am from Shivar district. जब हमको पता चला अपने सेंटर पर कि हमको यह मौका मिला है कि LF के द्वारा मुझे पटना डिस्ट्रिक्ट में उनको ये ट्रेनिंग करना है, तो हमें बहुत खुशी मिली कि हमें पता चला कि हमको जाना है, तो हमको बहुत खुशी मिली और यहाँ पर आए। जब हम आए तो यहाँ पर जो व्यवस्था देखे उसको हमको बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था क्या है, मतलब कि यहाँ पर रहन सहन, बात व्यवहार, यहाँ का खाना पीना सोना, मतलब रहने का व्यवस्था, वो सब बहुत अच्छा है, ये हमको अच्छा लगा। और यहाँ पर जब आए हम, यहाँ पर सीखने को बहुत मिली, बहुत ऐसी जानकारी है जो हमको मिली। जैसे मैं यहाँ पर की एक्टिविटी करवाना या बच्चों को कैसे रखना है, किस प्रकार बच्चों को बढ़ाना है या किस प्रकार बच्चों को शिक्षा देना है, इस सब चीज़ की जानकारी हमें मिली। ये जानकारी होना, और कभी भी हम लोगों को जानकारी लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जब हम लोग अच्छे रहेंगे तो भी हमारे बच्चा अच्छा रहेंगे। जब हम अच्छा करेंगे तो ही उस पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर और अच्छा काम आएगा। देखिए जैसे मैं मतलब ये सरकार का 7 निश्चय जो योजना है उसके द्वारा यह कराया गया है, जिसमें से यह बहुत अच्छा योजना है, सरकार बनाया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको अच्छा से इसको लागू करें और हर बच्चे को अपना अगले पीढ़ी को हम ही लोग का तैयार करना है, अच्छा जानकारी देना है, साथ में व्यवहार हो, बोलने हो, सब चीज़ के बारे में बताना है। तो ये हमको अच्छा लगा जानकारी, हमें एक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छा लगा। एक्टिविटी हमको जब करवाएंगे सर वहाँ पर सेंटर पर, तो बच्चों को भी अलग उमंग और अलग कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब हम यहाँ से आए तो कोई भी ऐसा नहीं लोग है जो वहाँ अपने सेंटर पर एक्टिविटी कराते होंगे। अभी जब यहाँ से सीख के जाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे तो यह बहुत अच्छा होगा। हम लोग चाहते हैं कि यह अच्छी से जानकारी ले और जानकारी को आगे तक बढ़ाए। Good morning sir and good morning all of you. I am Rahul Kumar Rajak from Jokiharट BSTC. हम अभी डिस्कस करेंगे लास्ट 2 डे जो यहाँ क्लास हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले CLS का क्लास में जो हम लोग को बताया गया कि CLS का क्लास में आप जाके क्लास में कैसे स्टूडेंट को इंगेज कर सकते हैं, एक्टिविटी के बारे में बताया गया, कौन कौन एक्टिविटी करा सकते हैं। पहले भी हम लोग कुछ कराते थे एक्टिविटी, लेकिन सर जो बताए एक्टिविटी बहुत अच्छा एक्टिविटी बताए। जैसे फार्म एक्टिविटी हुआ, वो जो उसमें अपने बारे में 5 अच्छा चीज़ बताना है, बहुत अच्छा लगा ये चीज़, अपने बारे में 5 अच्छा चीज़ लिखना है। फिर सॉफ्ट स्किल में जसीम सर जी बताएं, बहुत अच्छे लगे। सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में कैसे क्या करना है, ड्रेसिंग स्टाइल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने के जाएंगे
ड्रेसिंग स्टाइल आपका क्या है, बोलने का स्टाइल क्या है, क्लास में घुसना है तो पहले परमिशन लेके घुसना है, कैसे बैठना है, ये सब के बारे में बताना है। फिर आईटी में पिलर के बारे में बताया। पहले हम लोग 9 पिलर के बारे में जानते थे, एक बार ऐड हुआ 3 पिलर, और 12 पिलर है, उसमें क्या क्या टॉपिक है सब चीज़ के बारे में सर बताए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी जाएंगे क्लास में तो वहाँ बताएंगे ऐसे ही। और दूसरी बात, अभी हम लोग हर एक सेंटर से एक एलएफ आया हुआ है, हर सेंटर में 3 एलएफ है या 4 एलएफ है, जहाँ भी है। तो अभी तो हम लोग एक आए हैं, तो सबसे पहले जाके हम लोग अपना सेंटर पे जो दूसरा एलएफ है उसको ट्रेन करेंगे कि हम लोग जो सीख के आए वहाँ से क्या क्या सीखे हैं। कहा कि उसका नंबर तो अभी आएंगे 3 महीना या 4 महीना बाद ही आएंगे, तब तक तो क्लास तो चलेगी क्लास में, उसमें उसको बताएंगे कि हम लोग क्या सीखे वहाँ पे, कैसे कैसे क्या सीखे। थैंक यू सर। वेरी नाइस। सर, हम लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए आए हैं, और ट्रेनिंग का पहला दिन जो हमें सिखाया गया CLS में, जैसे इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में 2 पार्ट्स था, एक पर्सनल इंट्रोडक्शन और एक फूड एक्टिविटी, ऐसा जो कि बहुत अच्छा लगा। दूसरा, इसके बाद BSCIT के बारे में बताया गया, जैसे IRA का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसमें 12 पिलर्स के बारे में बताया गया, ऑफिस एक्टिविटी के बारे में बताया गया। और उसके बाद फिर CLS का जो उनका जो हमारा ट्रेनिंग था CLS का, उसमें हमें बहुत सारा नया एक्टिविटी बताया गया, जैसे कि मीटिंग में बात करते हैं, पिक्चर ड्राइंग, और उसका जो है एक्सप्लेन के बारे में, वो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद होम एक्टिविटी के बारे में बताया गया, जो हमारे अंदर ये 5 एक्टिविटी, अच्छा जो एक्टिविटी है उसके बारे में बताने के लिए बताया गया, जो कि बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नाम ईश्वरम BSPC मंजरिया से हूँ। मैं जब फर्स्ट दिन यहाँ पे आया ट्रेनिंग के लिए तो थोड़ा सा नर्वस था, अंदर से डर भी था कि मैं कैसे फेस करूँगा आप लोग को या सर से, जो हमारे सर होंगे वो कैसे होंगे। तो जिसे मैं आया फर्स्ट डे, तो जिसे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हमारे सर ने बताया, उसमें बताया कि ड्रेसिंग सेंस कैसे होने चाहिए आपकी, बच्चों से जब बात करें तो वो कैसे होनी चाहिए आप लोगों का, कि बच्चों हमारे बात को समझे। जैसे हम किसी से बात करते हैं वो हमारी बात को नहीं समझते हैं, वो कैसे होनी चाहिए, हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसे होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्लास हुआ CLS का, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हम जब क्लास कराते हैं CLS का तो उसमें बच्चे या बोरिंग फील करते हैं, जो टाइम बच जाता है उसमें वो चिल्लाने लगते हैं कि हम सर क्या करिए, क्या है, ये थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता है। जिससे CIT में उनको अच्छा लगता है, जो ड्यूटी वर्चल ये सब बताते हैं, पर CLS में नहीं होता है। तो सर ने एक्टिविटीज़ बताई हमें, जैसे फूड एक्टिविटी, कि उसमें बच्चों को हम कैसे इंटरेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग उसको बना के हम पेश करें कि बच्चों को भी इंटरेस्ट लगे उस चीज़ में, वो हुआ। उसके बाद CIT क्लास हुई, हमारा जो लास्ट क्लास हुआ CIT का हुआ, उसमें जिसे हम लोग जानते हैं 12 स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं, उसके बारे में सर ने, अभिषेक सर ने बताया। उसमें भी उन्होंने मतलब जिसे हम पढ़ाते हैं CIT में बच्चों को, तो बताते हैं ये 12 पिलर्स के बारे में, पर उसमें भी सर ने थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि वो आप बच्चों से आप कैसे शेयर करेंगे कि उसमें भी बच्चे को और ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा या बच्चे उसको और लाभ करेंगे। जैसे उसके बाद सेकेंड क्लास हुआ, फिर हमारे सर ने CSS का लिया, उसमें भी सर ने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बताई, जैसे क्लैपिंग्स गेम हम लोग को मोटिवेशन दिए। और CLS का जो सेकेंड क्लास हुआ वो सेकेंड डे में जो CLS का क्लासेस था उसमें सर ने पाम एक्टिविटीज़ करके दिखाया, ड्राइंग बताया, उसमें भी बच्चों को हम कैसे इंटरेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ से सीखे, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स भी बने हैं यहाँ पे। अच्छा लगा, मैं यहाँ आने से पहले मैं डरता था कि वहाँ पे लोग कैसे होंगे, या जो हमारे मास्टर ट्रेनर है वो कैसे मिलेंगे, कैसे मैं फेस करूँगा, या मैं उनसे कैसे बात करूँगा। पर मैं अब मेरा मन कर रहा है कि हम कुछ दिन अपने दोस्तों या सर के साथ रहें और कुछ नया चीज़ सीखें। और मेरा मन कर रहा है कि मैंने जैसे सर से भी बोला कि चाहे मेरे दोस्तों ने भी बोला कि सर कुछ दिन और रह सके हैं यहाँ पे और नया चीज़ सीखेंगे, क्योंकि हम जैसे ही जाएंगे अपने सेंटर पे, जो स्टाफ है या जो क्लासेस कराते हैं बच्चे हैं, उन्हें हम बता सकते हैं कि ये इंटरेस्ट हो। और बहुत मज़ा आया। और मैं लास्ट में यही कहूँगा, सर और जितने हमारे LF हैं, शुक्रिया, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और ये मोमेंट मैं लाइफ टाइम तक याद रखूँगा। थैंक यू। My name is Dinesh Kumar. I am from Kannada. My center code is KYP 0604010. Manoj Kumar.
जोन तो हमने आज फर्स्ट हम आए हैं यहाँ पे सेकेंड और, लेकिन हम यहाँ आने से पहले बहुत डर रहे थे कि वहाँ पे जाएंगे तो कैसे क्या होगा। हमें बहुत इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश बोलने में, यही हमको डर लगता था पहले आने से। हम क्या आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे आए तो फर्स्ट डे हम यहाँ पे आए थे स्टेज पे, तो बहुत हमें हेजिटेशन था अंदर से कि वहाँ पे आगे सर के सामने जाएंगे तो हमें कैसा लगेगा, क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज 90% आज हेजिटेशन दूर हो गया सर। और सर फर्स्ट डे क्लास में पहले CLS में जो भी एक्टिविटी करा गया हमें, तो जैसे फूड एक्टिविटी हो गया, फिर कल सर करा पाम एक्टिविटी और था ड्राइंग एक्टिविटी, वो सर हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी जाके अपने सेंटर पे वो भी एक्टिविटी करवाएंगे। और CIT में सर बताया पहले से 9 पिलर था, उसमें 3 पिलर ऐड किया हुआ है। वो पिलर को 12 पिलर के बारे में उसमें सर बताया, फिर से दोबारा रिपीट किए। वो भी पिलर हम जाके जो भी एक्स्ट्रा पिलर है उसके बारे में जाके अपने सेंटर में बताएंगे। और CSS में सर बताया सॉफ्ट स्किल, उसमें जो भी जैसे उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया वगैरह, उसके बारे में सब बताया। हमें बहुत अच्छा लगा। हम अपने सेंटर पे जाके सभी अपने बच्चों से जो भी हमें मिला वो सब सारा शेयर करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम नीतीश कुमार है। हम BSDC मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। यह जो 3 दिन की ट्रेनिंग हुई है हम लोगों का OLLF का, और सबसे बेटर चीज़ इसमें यह लगा, जो चीज़ हमको जानकारी नहीं था, जैसे कि पहले कभी भी हम कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए हुए थे। और अटेंड करने के बाद IT में जैसे हम लोग बताते थे, BSCIT के बारे में हम अपने बच्चे को बताते थे, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर के बारे में, कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पूर्ण रूप से बताते थे। अभी जो हम बता रहे हैं, जैसे 9 पिलर्स 12 पिलर के बारे में बताए थे सर, उसमें से कुछ पिलर्स के बारे में जानकारी थी हमको। इसके बाद 3 पिलर्स के बारे में विशेष रूप से सर बताए, और पूर्ण रूप से उस चीज़ को हम ग्रहण किए और बच्चे के सामने जो है पूर्ण रूप से हम परिभाषित करेंगे कि अच्छे रूप से बताने का। और दूसरा स्टेप में BSCLS का क्लास, लैंग्वेज स्किल्स का क्लास जो है, पहले बच्चे जो है जैसे बोरिंग फील करने लगते थे कुछ टाइम के लिए, कोई टेक्निकल इशू हो या कोई भी इशू हो, क्लास लेते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आ जाता था, तो उस टाइम बच्चे को हम या तो टाइपिंग के लिए भेज देते थे लैब रूम, या तो बच्चे को कुछ टाइम के लिए बैठा के रखते थे और बच्चे इन्वॉल्व हो जाते थे अपने अपने वर्क में, जैसे कि फ़ोन चलाने इन्वॉल्व हो जाते थे या अपने में बातचीत करने में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो वह चीज़ें जो है, यह एक्टिविटी जो न्यू एक्टिविटी हम लोग सीखे हैं, तो यह एक्टिविटी को हम हमेशा जो है वहाँ पे बताने का पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, जैसे कि बच्चा का मूवमेंट, वो बात करने का, इस कम्युनिकेशन करने का जो सॉफ्ट स्किल्स बच्चे के अंदर जो होता है, वह सॉफ्ट स्किल्स जो है पूर्ण रूप से, जैसे कोमलता, नम्रता से कैसे बात करेंगे, हम अपने फेस पे कैसे एक स्माइल रखेंगे कि बच्चे उस चीज़ से प्रेरित हो। या हम जो इससे पहले हम जो बच्चे से इंट्रोडक्शन क्लास लेते थे, या बच्चे जो यहाँ आने से कितना घबराते थे, वह चीज़ आज हमको घबराहट हो रही है जैसे, और इस चीज़ को फेस करेंगे और बच्चे के दिल की हालों को कंप्लीट हम जानेंगे। उसके बाद बच्चे से भी क्वेश्चन या करने से पहले पूर्ण रूप से बताएंगे कि किस प्रकार की परेशानी होती है यहाँ आने से पहले। चलिए बात नहीं। Good morning, sir. Good morning, all of you. Myself, Praveen Tiwari. I belongs to Kamur Bhubar district, Durgavati block. KYP center code है KYP 060-300-14। बात रह गई कि जब हम लोग यहाँ पे सुने कि हम लोग को जाना है वहाँ पे ट्रेनिंग में, तो इस चीज़ के लिए हम लोग को पता नहीं था कि ट्रेनिंग वहाँ पे कैसा होता है, फर्स्ट डे कैसा होता है, एक्सप्रेशन हम लोग का क्या होना चाहिए वहाँ पे जाने के बाद, चाहे मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए कुछ सीखेंगे तो क्या होना चाहिए। तो हम फर्स्ट डे हम लोग आए तो यही देखे हम लोग कि जब आए हैं तो सर से मिले, बातचीत किए, हमको लगा कि नहीं यहाँ से तो कुछ हमको सीखने का जरूर मिला, सब अपने फ्रेंड दोस्तों से भी मिले तो कुछ सीखने को मिला। बात रही हम लोग फर्स्ट डे के, तो सबसे पहले हम लोग आए तो जसीम सर से मिले। जसीम सर बोले कि आप लोग कुछ अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस करिए, बताइए, आप लोग अपने बारे में खुदिया बताइए। सबसे पहले हम लोग फूड एक्टिविटी किए। फूड एक्टिविटी के बाद माध्यम से
थोड़ा सा हम लोग को ये लगा कि नहीं, हम कुछ अपने अंदर से कुछ जो हमारी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें बतानी चाहिए, जो उनके नाम बताएं। एक्टिविटी भी हम लोग की एक्टिविटी में ये रहा कि जैसे फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग का फूड था, दूसरा हम लोग को आगे कि जसीम सर के साथ द्वारा फूड एक्टिविटी, फिर उसके बाद भरपूर सर आए, फिर एडजेक्टिव एक्टिविटी मतलब कराएं, फिर उसके बाद नेम वाला कराएं, जिससे हम लोग का एक्टिविटी हुआ। हम लोग क्या करते थे कि एक नेम वाइज हम लोग याद करते थे, एडजेक्टिव के साथ जोड़ करके क्या होना चाहिए, ठीक है। वो एक्टिविटी के साथ प्रफुल्ल सर ने हमें बताया कि किस तरह से हमें मतलब CLS के बारे में पढ़ाना है, बच्चों को बताना है, कॉन्टेक्स्ट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हम एक्टिविटी बताना चाहे कि मान लीजिए हमें हॉलीडे पे जाना है, चाहे कोई भी हो इस तरह से, तो आखिर किस तरह से हमें वहाँ पे माहौल बनाना है, वो चीज़ कैसे हमको सॉल्व करना है, ये चीज़ें प्रफुल्ल सर के द्वारा बताया गया। उसके बाद फिर हम अभिषेक सर से मिले तो CIT के बारे में बताएं कि आखिर आप जब CIT पढ़ाते हो तो जो चीज़ आपके पास नॉलेज है उसके अलावा आप 12 पिलर के बारे में भी जानते हो, तो थोड़ा सा हम लोग क्या किए कि इस चीज़ को अपने तरह से भी रखें और सर के द्वारा भी जानकारियाँ हमको मिला एक्टिविटी के माध्यम से। 12 पिलर के बारे में भी हमने बताया। उसके बाद फिर जसीम सर के द्वारा हम जब सॉफ्ट स्किल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है सॉफ्ट स्किल। अगर मान लीजिए अगर हम लोग क्लास में एंट्री करते हैं, जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे किसी को भी बताते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए, आई कॉन्टेक्स्ट सही होना चाहिए, और हम क्या बोल रहे हैं वो चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सर के सामने ही हम बोल रहे हैं तो हमारे क्या बोलना है, किन शब्दों पर ध्यान देना है, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी मायने रखता है। फिर उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट पे आना चाहिए। और फर्स्ट सामने मेरा बच्चा अगर फर्स्ट दिन मेरे सामने आता है तो पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि वो किस मूड में है, किस तरह से पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, ये चीज़ें जानी चाहिए, ठीक है। वो अपना माहौल बना देंगे सेंटर पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम इमाम तिवारी, मैं जहानाबाद की कक्षा सेंटर से आया हूँ, जिसका KYP कोड KYP 04030012 है। जब हमें पता चला कि मेरा नाम यहाँ लिस्ट में आ गया है, सेंटर से जब पता चला तो सर बोले तुमको अपना ट्रेनिंग में जाना, तो मैं तो सोचा यहाँ ट्रेनिंग में आखिर होगा क्या, क्योंकि जब हम अपने सेंटर पे पढ़ाते होते हैं तो पता चलता है कि हम सेंटर पे शेर हैं। यहाँ आने के बाद पता चलता है हम तो ट्रेनिंग में आए हैं, हम तो खुद ट्रेनर हैं, कि जब हम ट्रेनिंग खुद करने जा रहे थे, एक स्टूडेंट हो गए, तो जैसे स्टूडेंट हमको फेस करता है उसी तरह हमको भी फेस करना है। यहाँ जैसे आए तो होता है क्या कि आई एम वेरी पंक्चुअल, हम टाइम का पंक्चुअल हैं, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हम आए शुरू छोड़ देंगे फिर 10 बजे भी है ना बाकी अभी, प्लीज डोंट इंटरप्ट। हम 10 बजे आए तो जैसे ही आए तो उसी समय हमारा इंट्रोडक्शन लिया गया। थोड़ा लगा, जब हम बच्चा को बुलाते हैं हम तो खुद बुला देते हैं, वहाँ पढ़ा देते हैं, लेकिन जब बच्चा को यहाँ बुलाते हैं तो बच्चा गड़बड़ाता है। हम वहाँ खुल के पढ़ा लेते हैं, लेकिन जब यहाँ आए तो हम अपना इंट्रोडक्शन देने में भी गड़बड़ा रहे थे, क्योंकि जस्ट आए और सर बोले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यहाँ आने के बाद पता चला हमारे 3 मास्टर ट्रेनर हैं, प्रफुल्ल सर, अभिषेक सर, जसीम सर। तीनों से बहुत सीखने को मिला हमको। और क्या था कि हम जब सीख रहे थे, हम लोग KYP में 3 टॉपिक सीख रहे थे, CIT, CLS और SS सीख रहे थे। CIT हमारा IT सेक्टर का होता है, जिसमें हम लोग विंडोज़ के बारे में जानते हैं, MS वर्ड के बारे में जानते हैं, एक्सेल बारे में जानते हैं, नॉर्मल बेसिक चीज़ जानते हैं। LS के बारे में हम बोलना सीखते हैं, किसी से कैसे हमको बात करना है। लेकिन सॉफ्ट स्किल में सीखते हैं क्या, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किसी के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करें, कौन सा हमारा ड्रेसिंग होना चाहिए, ये सारा चीज़ हमारा मायने रखता है। तो CIT, CLS और CSS जो होता है, इसमें हमारा मानना है कि सबसे पहले हम CSS को महत्व दें। इम्पॉर्टेंट वही है, क्योंकि जैसे हम आते हैं अंदर में, जैसे हम इन किए तो होता क्या है कि सबसे पहले हमारा बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, हमारे पास क्या है, वो हम क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, वो कोई नहीं जानता। दूसरी चीज़ क्या होता है, जैसे हम CSS हो गया, उसके बाद लैंग्वेज में आते हैं, उसके बाद हमारा IT देखा जाता है। यहाँ पे आने के बाद हमको बहुत बढ़िया लगा, हम उम्मीद ले करके आए थे कि कुछ सीख करके जाएंगे। हमने IT में भी बहुत कुछ सीखा। LS में जब हम LS का क्लास लेते थे तो LS में क्या करते थे, क्लास को ग्रीन करवाए, बच्चा को क्लिकर करवाते थे, उसके बाद क्या करते थे, एक्टिविटी थोड़ा मोड़ा करवाए, उसके बाद नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम लोग उतना सोचते नहीं थे। और वही ट्रेनिंग के लिए हम आए थे। यहाँ से एक्टिविटी बहुत सारा कलेक्ट हम करके जा रहे हैं यहाँ से, जैसे एडजेक्टिव था, सेंटेंस के बारे में था, कॉन्टेक्स्ट के बारे में था, ये सारा चीज़ हम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। और SS में जो था, हम लोग किसी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये हमने सीखा यहाँ से। थैंक यू।